بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ جی تو میرے پیارے ویورز اور میرے پیارے بچوں، کیا حال چال ہے آپ سب کا؟ امید ہے کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اور جیسا کہ ہم نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ کی جو ٹرانسلیشن تھی اس چیپٹر کی، چیپٹر نمبر 4 کی، وہ ہم نے کور کی تھی، ٹھیک ہے۔ اینڈ ناؤ ان دس ویڈیو آئی ایم گوئنگ ٹو ڈسکس ود یو باکس کویشچنز اینڈ آلسو ڈسکس ود یو دا چیپٹرز ایکسرسائز کویشچنز۔ چیپٹر کے ایکسرسائز کویشچنز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور باکس کویشچنز بھی، لیکن سب سے پہلے ہم جو اپنے باکس کویشچنز کو آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں میں۔ سو وداؤٹ اینی ٹائم ویسٹنگ لیٹس اسٹارٹ آور لیکچر۔ اور لیکچر بیٹے شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچتی رہے۔ تو بیٹے جی یہاں پر ہمارا سب سے پہلا سوال ہے، باکس کویشچن ہے کہ ہو مائگریٹڈ فرام مکہ مکرمہ ٹو مدینہ منورہ ان دا ایئر 622 AD۔ 622 ہجری میں جو ہے وہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کس نے جو ہے وہ ہجرت کی تھی؟ تو بیٹے ایک بات آپ نے بیٹے یاد رکھنی ہے کہ اگر آپ کے سوال میں یہاں پر جو ہے وہ پاسٹ دیا گیا ہو، کیا دیا گیا جو میں ہائی لائٹ کر رہی ہوں آپ کے لیے، اگر یہاں پر پاسٹ دیا گیا ہو، پاسٹ سے مراد ہے کہ ایڈی اگر لگ گیا ہے تو ایڈی سے مراد یہ ہے کہ یہاں پر پاسٹ انڈیفینیٹ کی بات ہو رہی ہے، پاسٹ انڈیفینیٹ کے سوالیہ فقرے کی، کیونکہ ہو مائگریٹڈ، تو آپ نے اگر آپ کا جواب پاسٹ میں ہے تو بیٹے آپ نے اپنا آنسر بھی پاسٹ میں ہی کرنا ہے، جیسا کہ یہاں پر جو ہے وہ یہاں پر سوال میں پھر سے جو ہے وہ مائگریٹڈ آیا، مطلب سوال کی جو نوعیت ہوگی آپ نے جو ہے نا وہ جواب بھی اسی نوعیت میں دینا ہے، اسی ٹینس میں آپ نے جواب دینا ہے۔ تو بیٹے ہاں یہاں پہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ ہز کلوز کمپینین حضرت ابوبکر صدیق مائگریٹڈ فرام مکہ مکرمہ ٹو مدینہ منورہ ان دا ایئر 622 AD۔ 622 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے قریبی ساتھی ابوبکر صدیق نے مکہ مدینہ سے مدینہ منورہ جو ہے وہ ہجرت کی 622 ہجری میں۔ اگر جو ہمارا سوال نمبر 2 ہے کہ what title was حضرت اسماء given for his services during the migration preparation and why۔ اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ ہجرت کی تیاری کے دوران اور اس ساری خدمات کے دوران آپ کو کون سا ٹائٹل دیا گیا اور کیوں دیا گیا۔ اب یہاں پہ کہتے ہیں حضرت اسماء was given the title ذات نطاقین کی، آپ کو ذات نطاقین کا جو ہے وہ خطاب دیا گیا۔ اب کیوں وہ دیا گیا؟ اب یہ بھی بات یاد رکھنے کہ یہاں پر جو ہے وہ پاسٹ انڈیفینیٹ کا سمبل فکرہ تو ہے لیکن اس کو پیسو کے فارم پر استعمال کیا گیا ہے کہ واز کے ساتھ تھرڈ فارم گیون آ رہی ہے، تو آپ نے اپنے آنسر میں وہی چیز لکھنی ہے کہ تسمہ واز گیون دی ٹائٹل آف ذات نطاقین بیکاز کیونکہ شی تورڈ ہر ویسٹ بیلٹ انٹو ٹو ٹائی فوڈ فار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ڈیورنگ دا ہجرہ پریپریشن، کہ ہجرت کی تیاری کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ابوبکر صدیق کے لیے آپ نے کیا کہ آپ نے اپنا جو کمر بند ہے اس سے کھانا کو باندھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ابوبکر صدیق کے لیے وہ لے کر جاتی تھی، اس وجہ سے ان کو جو ہے ذات نطاقین کا ٹائٹل دیا گیا۔ تو بیٹے آگے بات کرتے ہیں کہ کوشچن نمبر 3 کی کہ what did اسماء رضی اللہ تعالیٰ do when ابو جہل demanded to know the whereabout her of her father۔ اب یہاں پر کہتے ہیں کہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ نے جب ابو جہل نے ان سے یہ ڈیمانڈ کی کہ ان کے جو ہے وہ ابا کہاں ہیں، ان کے فادر کہاں ہیں، تو اسماء نے کیا کیا؟ تو بیٹے یہ بات یاد رکھیں کہ اب دیکھیں سوال میں جو ہے وہ اگین سے آپ کا جو ہے وہ کیا استعمال ہو رہا ہے بیٹے، جو ہے وہ ڈیڈ استعمال ہوا ہے۔ اب ڈیڈ کیا ہے جی؟ ڈیڈ آپ کو یہ شو کرواتا ہے کہ یہاں پر پاسٹ انڈیفینیٹ کا جو سوالیہ فقرہ یوز ہوا۔ اب یہ ساتھ ساتھ بتانے کا مقصد بیٹے یہ ہے کہ آپ کے ایگزامز کے پوائنٹ آف ویو کے لیے، اب ایگزام جو آپ کے ہوتے ہیں بیٹے، ایگزام کے پوائنٹ آف ویو کے لیے یہ چیز آپ کے لیے بہت زیادہ معنی رکھتی ہے، کیونکہ جب ایگزامینر ایک چیز کو چیک کرتے ہیں تو وہ یہ چیز دیکھتے ہیں کہ بچوں کو اتنی سینس نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ ایگزام میں جو ہے وہ ہم نے کیا چیز لگانی اور کیا چیز نہیں لگانی۔ چیز سے مراد یہ ہے کہ ان کو اتنا ہی پتہ نہیں چلتا کہ سوال ہمارا کس ٹینس میں ہے اور ہم نے جواب کو کس ٹینس میں کرنا ہے۔ تو بیٹے یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اگر آپ کا جو سوال ہے وہ پاسٹ میں ہے تو آپ نے آنسر بھی پاسٹ میں کرنا ہے، اگر آپ کا سوال پریزنٹ میں ہے تو آپ نے جواب بھی اپنا پریزنٹ میں دینا ہے۔ یہ چیز بڑی معنی رکھتی ہے ورنہ یہ آپ کے بلنڈر کہلاتے ہیں۔ حضرت اسماء replied how would I know، کہ میں کیسے جان سکتی ہوں when ابو جہل heard، جب ابو جہل نے یہ سنا this، یہ سنتے ہوئے he slapped her hard، he slapped her
सख्त कि उन्होंने उन्हें बहुत सख्त थप्पड़ मारा, बट शी रिमेन्ड स्टेडफास्ट, लेकिन फिर वो साबित कदम रही, एंड डिड नॉट रिवील द सीक्रेट, और उन्होंने सीक्रेट को जो है वो रिवील, सीक्रेट को जाहिर, उन्हें राज को जो है फशा नहीं किया। आगे क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं कि हाउ डिड हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला एलिवेट हर ब्लाइंड ग्रैंडफादर्स कंसर्न अबाउट द फैमिलीज वेल्थ। तो उन्होंने जो है ना फैमिली की, खानदान की दौलत के बारे में अपने दादा अबू की तशवीश को, परेशानी को किस तरह से खत्म किया। तो कहते हैं अस्मा रज़ियल्लाहु ताला प्लेस्ड पेबल्स अंडर अ क्लोथ। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कंकर रख दिए एक कपड़े के नीचे, टू मेक हर ब्लाइंड ग्रैंडफादर्स हज़रत अबू कुहाफा, अपने जो है ना वो नबीना दादा अबू हज़रत अबू कुहाफा को बिलीव, ये यकीन दिलाने के लिए, दैट द फैमिली स्टिल हैड वेल्थ, कि जो खानदान, उनकी फैमिली अभी तक दौलत रखती थी, ईजिंग हिज कंसर्न, उनकी तशवीश को खत्म करने के लिए, उनकी तशवीश को जो है वो आसान करने के लिए, या ये कह लें कि परेशानी को खत्म करने के लिए, ईजिंग इज कंसर्न, उनकी परेशानी को रिवील करने के लिए, उनकी परेशानी को रिवील नहीं, खत्म करने के लिए। आई होप बेटे आपको क्वेश्चन जो है ना इन क्वेश्चन की समझ आ रही होगी। तो आगे हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। अब यहाँ पे कहते हैं कि लिस्ट द फैमिली रिलेशन ऑफ हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला मेंशन्ड इन द टेक्स्ट। अब यहाँ पर कहते हैं कि उन फैमिली रिलेशन को बताइए जो कि इस पूरे चैप्टर में बयान किए गए हैं। कहते हैं द फैमिली रिलेशंस ऑफ हज़रत अस्मा मेंशन्ड इन द टेक्स्ट आर डॉटर ऑफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक, आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक की बेटी थी, हज़रत जुबैर बिन अल-अवाम, मदर ऑफ हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुबैर, ग्रैंड डॉटर ऑफ हज़रत अबू कुहाफा। जी तो बेटे ये जो हमारे बॉक्स क्वेश्चन थे। अब जो है वो आगे हम अपने एक्सरसाइज क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं जो कि हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं। यहाँ पर कहते हैं कि हाउ डिड अस्मा's actions during the migration demonstrate her resourcefulness and courage, provide specific examples from the text। अब यहाँ पर बेटे वो क्या बात करते हैं जी, तो यहाँ पर वो कहते हैं कि हज़रत अस्मा एक्शंस ड्यूरिंग द माइग्रेशन डेमोन्स्ट्रेट हर रिसोर्सफुलनेस। अब यहाँ पर रिसोर्सफुलनेस का मतलब होता है चालाकी या दानिशमंदी या मसला हल करने की सलाहियत या मुश्किल हालात में काम करने की काबिलियत, और करेज और उनकी हौसला अफजाई, प्रोवाइड स्पेसिफिक। अब यहाँ पे कहते हैं कि माइग्रेशन के दौरान किस तरह से जो उन्होंने काम किए वो किस तरह से उनकी दानिशमंदी को और उन हौसले को बयान करती है। इस टेक्स्ट में से एक एग्जाम्पल को बयान करें। तो कहते हैं हज़रत अस्मा शोड रिसोर्सफुलनेस एंड करेज। यहाँ पे कहते हैं हज़रत अस्मा की जो दानिशमंदी है, उनका जो हौसला है ड्यूरिंग द माइग्रेशन, इस हिजरत के दौरान, ये शो करता है कि टाइंग फूड खुराक को बांधा विद हर वेस्ट बेल्ट, अपने जो है वो कमर बंद से, एडिंग द अर्निंग द टाइटल जातुन नतकीन, और जातुन नतकीन का टाइटल कमाया, खिताब कमाया। ब्रिंगिंग फूड टू केव ऑफ सौर, हमारे सौर में जो है वो खाना लेकर गई। एट नाइट डिस्पाइट द डेंजर्स, खतरा होने के बावजूद। ब्रेवली फेसिंग अबू जहल को बड़ी बहादुरी से उनका सामना किया। रिफ्यूजिंग टू रिवील हर फादर्स लोकेशन, अपने अबू की जो लोकेशन का उनके लोकेशन को जो है वो रिवील किए बिना उनकी इनकार किया। इवन आफ्टर बीइंग स्लैप्ड, थप्पड़ खाने के बाद भी। रीअश्योरिंग हर ब्लाइंड ग्रैंडफादर, और अपने जो है वो नबीना दादा अबू को यकीन दिलाया। बाय प्लेसिंग पेबल्स अंडर अ क्लोथ टू मेक हिम थिंक दे स्टिल हैड वेल्थ, इस बात को यकीन दिलाया पत्थर रखते हुए कपड़े के अंदर कि अभी तक जो है वो दौलत रखते थे। अब कहते हैं हर एक्शन शोड विजडम, ब्रेवरी एंड डिवोशन। ये सारे उनके एक्शन क्या शो करते हैं? अक्लमंदी, बहादुरी और डिवोशन, अकीदत जो है ना वो जाहिर करते हैं हज़रत अस्मा की। होप सो कि बेटे आपको क्वेश्चन नंबर 1 की समझ आई होगी। आगे चलते हैं हमारे सवाल नंबर 2 की तरफ। यहाँ पे कहते हैं कि हाउ कैन द क्वालिटीज ऑफ हज़रत अस्मा बी अप्लाइड टू द कॉन्टेम्परेरी सिचुएशन। अब यहाँ पर क्या बात करते हैं जी? कॉन्टेम्परेरी सिचुएशन का मतलब होता है कि जो हाजिर होना, लाइक कह लें कि कॉन्टेम्परेरी सिचुएशन की उस वक्त के जो हालात थे उनमें जो उन्होंने किया, ये कह लें कि एक ऐसा आंसर होता है जो ऐसे किसी शख्स को जाहिर करता है जो मौजूदा वक्त से हो या जमाने से हो। कहते हैं कि ऐसे हालात को, उनके ट्रस्ट को और उनकी इंटेग्रिटी मीन उनकी जो दयानतदारी है उनको बयान करें, वो किस तरह से उनकी क्वालिटीज पर अप्लाई होता है। यहाँ पे कहते हैं कि अस्मा's ट्रस्ट एंड इंटेग्रिटी है, अस्मा की जो सच्चाई है और उनकी जो ईमानदारी है, टीच अस टू स्टैंड फॉर ट्रूथ एंड कीप सीक्रेट्स, वो हमें ये सिखाती है कि हम अपने राजों को फशा ना करें, सच्चाई के साथ जो है वो खड़े रहें। और दूसरा वो यहाँ पर क्या बात करते हैं जी
एग्जाम्पल में कि आर जर्नलिस्ट प्रोटेक्टिंग अ कॉन्फिडेंशियल सोर्स। अब यहाँ पर क्या बात करते हैं, कॉन्फिडेंशियल सोर्स का मतलब होता है कि खुफिया जरिया या खुफिया राज या ऐसे शख्स के राज जिनको आप को शो करने के लिए बहुत सख्ती से मना किया गया हो। अंडर प्रेशर होने के बावजूद भी आप उन राजों को रखें, जैसा कि शी प्रोटेक्टेड हर फादर सीक्रेट, जैसे कि उसने अपने बाप की सीक्रेट को जाहिर नहीं होने दिया और उनकी हिफाजत की। तो आगे हमारा सवाल नंबर 3 है कि समराइज द की चैलेंज हज़रत अस्मा's फेस ड्यूरिंग द माइग्रेशन एंड हाउ शी ओवरकम देम। अब कहते हैं कि उन चैलेंज को जाहिर करें, समराइज करें जो हज़रत अस्मा ने माइग्रेशन के दौरान, हिजरत के दौरान उनका सामना किया और उनको उन्होंने ओवरकम कैसे किया। अब कहते हैं सवाल में चैलेंजेस हाउ हज़रत अस्मा ओवरकम देम। secretly delivering food to cave of Thor, she showed courage and determination। अब यहाँ पे कहते हैं कि गौरे सोर में खाना पहुंचाना खामोशी के साथ सीक्रेटली उनकी हिम्मत को शो करता है, उनकी हिम्मत को जाहिर करता है और उनके पुख्ता अज़म को। फेसिंग अबू जहल एंगर एंड बीइंग स्लैप्ड, थप्पड़ खाने के बावजूद भी अबू जहल के गुस्से का सामना करना, ये उनकी जो है वो साबित कदमी, उनकी स्टेडफास्ट एंड केप्ट द सीक्रेट, उनके जो है वो राज रखने को शो करता है। रीअश्योरिंग हर ब्लाइंड ग्रैंडफादर, और अपने दादा नबीना दादा अबू को ये यकीन दिलाता है उनकी वेल्थ के बारे में। शी शोड विजडम, यहाँ पर उनकी अक्लमंदी जो है वो शो होती है जब उन्होंने कपड़े के नीचे पत्थर को रखा। हर ब्रेवरी पेशेंस एंड इंटेलिजेंस, उनकी बहादुरी, उनका सब्र और उनकी जो अक्लमंदी है वो कहती है हेल्प्ड हर ओवरकम दी चैलेंज, इन चैलेंजेस को क्या करती है जी, ओवरकम करने में उनकी मदद की उन्होंने। इन 3 चीजों ने, ब्रेवरी ने, पेशेंस ने और इंटेलिजेंस ने। जाके हमारा सवाल नंबर 4 है इन व्हाट वेज डिड अस्मा हैंडल द ट्रस्ट प्लेस्ड इन हर बाय हर फादर एंड रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं कहते हैं ऐसे कौन से वो रास्ते हैं, ऐसे कौन से वो वेज हैं जिनमें हज़रत अस्मा ने जो है वो अपने बाबा और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ट्रस्ट को हैंडल किया, और हाउ डिड हर एक्शंस इंश्योर, और कौन से वो से एक्शन यकीन दिलाते हैं द सेफ्टी, तहफ़्फ़ुज़ का एंड सक्सेस का, किसकी जी, हिजरत की। तो आंसर में कहते हैं जी शी डिड नॉट रिवील द सीक्रेट इवन व्हेन अबू जहल स्लैप्ड हर, तो उन्होंने अबू जहल से थप्पड़ खाने के बावजूद भी उन्होंने राज को फशा नहीं किया। शी टुक फूड टू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हज़रत अबू बकर सिद्दीक इन द केव, और उन्होंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गार में खाना लेकर जाती। शी वाज केयरफुल टू कीप देम सेफ, और वो बात की भी एहतियात करती कि उनको वो महफूज रखे। सो हर ब्रेवरी हेल्प मेक द माइग्रेशन सक्सेसफुल, सो इस वजह से उनकी जो कामयाबी है उसने जो हिजरत को कामयाब बनाया। आई होप बेटे आपको क्वेश्चन नंबर 4 की भी अच्छे तरीके से समझ आई होगी। आगे हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, जहां पर बात करते हैं कि रिफ्लेक्ट ऑन अस्माज सेल्फ डिसिप्लिन ड्यूरिंग द प्रिपरेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द माइग्रेशन। बेटे यहाँ पर वो क्या बात करते हैं, वो कहते हैं कि उनका जो सेल्फ डिसिप्लिन है तैयारी के दौरान, और उनकी जो है वो एग्जीक्यूशन से मीन ये है कि अमल दरामद माइग्रेशन के दौरान जो उन्होंने की। फिर कहते हैं कि उनको रिफ्लेक्ट करें, फिर कहते हैं कि हाउ डिड हर सेल्फ डिसिप्लिन कंट्रीब्यूट टू हर इफेक्टिव हैंडलिंग टू डिफिकल्ट सिचुएशन, और किस तरह से उन्होंने सेल्फ डिसिप्लिन के तौर पर उन्होंने सारी इस मुश्किल हालात को किस तरह से हैंडल किया, किस तरह से मौसर बनाया। तो कहते हैं कि हजरत अस्माज सेल्फ डिसिप्लिन में केप्ट द सीक्रेट, उन्होंने सीक्रेट को रखा अबू जहल के थ्रेट, उनके खतरे के बावजूद। ब्रेवली डिलीवर्ड फूड एट नाइट, stayed calm, used wisdom to reassure her grandfather, कि वो बिल पर सुकून रही, उन्होंने अपनी अक्लमंदी को इस्तेमाल किया अपने ग्रैंडफादर को, अपने दादा को यकीन दिलाने के लिए। अब अगर आप देखें तो हर सवाल में जो है ना वो एक ही बात बार बार रिपीट हो रही है, जो कि आपके लिए याद करना बहुत ही ज्यादा आसान है। आपने जो है ना हर क्वेश्चन को अच्छे तरीके से करना है। आपके लिए ये बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चंस बनाए गए हैं ताकि आप लोगों को याद करने में बेटे कोई भी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। और अगर हम इसकी समरी देखें इस सवाल की, तो कहते हैं हर पेशेंस एंड करेज हेल्प्ड हर हैंडल चैलेंज सक्सेसफुली, हम कहते हैं उनकी जो सब्र है, उनका जो हौसला है, उसने मदद की इन सारे चैलेंजेस को कामयाब करने के लिए। कहते हैं कि बड़ी कामयाबी से जो है ना वो उसने इन सारे चैलेंजेस का सामना किया और उनको हौसला और सब्र से जो है वो उनको हैंडल किया।
आई होप बेटे आपको क्वेश्चन नंबर 5 की भी समझ आई होगी। अगर बेटे हमारा सवाल नंबर 6 है कि हाउ डिड हज़रत अस्मा शो रिस्पेक्ट फॉर हर सेल्फ, किस तरह से जो है वो हज़रत अस्मा अपने लिए उनकी जो है वो रिस्पेक्ट शो होती है एंड अदर्स दूसरों के लिए थ्रू आउट द इवेंट, इन सारे वाक़यात के बावजूद डिस्क्राइब्ड इन द टेक्स्ट, जो कि टेक्स्ट में बयान किए गए हैं। प्रोवाइड स्पेसिफिक एग्जांपल्स टू सपोर्ट योर एनालिसिस, और अपने एनालिसिस को जो है ना वो कहते हैं कि सपोर्ट करने के लिए एक एग्जांपल दे दे। तो वो अगर ना भी दे तो इतना कोई इशू नहीं है, लेकिन यहाँ पर फिर भी वो बयान किए गए हैं कि स्टेट स्ट्रॉन्ग, कि वो मजबूत रही व्हेन अबू जहल स्लैप्ड हर एंड डिड नॉट टेल हर फादर सीक्रेट, helped Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and her father by bringing food, showing love and loyalty. तो रिस्पेक्टेड, अब यहाँ पे कहते हैं कि आप सल्लम और अपने बाबा की मदद करना, उनके लिए खाना लेकर जाना, वो उनकी मोहब्बत और उनकी ईमानदारी को शो करता है। रिस्पेक्टेड हर ग्रैंडफादर, अपने बाबा की जो है वो अपने दादा अबू की इज्जत करते हुए बाय कामिंग हर वरीज, और उनको परसकून, उनकी परेशानियों को परसकून किया अबाउट देयर वेल्थ, उनकी दौलत के बारे में। हर ब्रेवरी, काइंडनेस एंड विजडम शोड रिस्पेक्ट फॉर हर सेल्फ एंड अदर्स। अब यहाँ पे कहते हैं कि दूसरों के लिए और अपने लिए उनकी अक्लमंदी, उनकी जो रहम दिली, उनकी बहादुरी जो है वो शो करती है, अपने लिए रिस्पेक्ट और दूसरों के लिए। तो बेटे यहाँ पर जो एग्जांपल्स हैं वो भी यही समझ लें, और उनके जो इतने भी किस तरीके से उन्होंने अपनी और दूसरों की इज्जत की, वो सारा कुछ आपके इस सवाल में कवर हो रहा है। आई होप कि बेटे आपको इसमें भी किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये बड़ी ही अच्छे तरीके से, बड़ी ही शॉर्ट फॉर्म में आपके लिए जवाब जो है मैंने बनाए हैं। तो बेटे आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 और लास्ट क्वेश्चन है, वो कहते हैं कि इन व्हाट वेज डिड अस्मा डेमोन्स्ट्रेट रिस्पेक्ट फॉर हर ग्रैंडफादर, किस तरीके से उन्होंने अपने दादा अबू की इज्जत को जो है ना वो की, उनकी इज्जत की। एंड इवन देन ही वाज अ डिसबिलीवर एट द टाइम, और हत्ता कि उस वक्त वो काफिर भी थे। एंड हाउ डिड दिस रिस्पेक्ट अलाइन विद हर वैल्यूज एंड बिलीफ, और किस तरह से जो उनकी जो इज्जत है और उनकी जो इक़्तिदार, उनके यकीन, उन्होंने किस तरह से उन सब की उसने इज्जत की कि वो काफिर भी थे, फिर भी हज़रत अस्मा ने उनके साथ उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं किया, उनको रिस्पेक्ट ही की। तो यहाँ पर कहते हैं काम्ड हिज वरीज, उनकी परेशानियों को परसकून करके, बाय प्लेसिंग पेबल्स अंडर अ क्लॉथ, कपड़े के नीचे पत्थर रखकर, टू मेक हिम फील दे हैड वेल्थ, उनको ये महसूस करवा कर कि वो अभी भी दौलत रखते हैं। स्पोक पोलाइटली, बड़ी नरमी से उनके साथ बात की। एंड ट्रीटेड हिम विद काइंडनेस, और रहमदिली के साथ उनके साथ सलूक करते हुए, डिस्पाइट हिज डिसबिलीव, इस बात के बावजूद कि वो काफिर हैं। हाउ दिस मैच्ड हर वैल्यूज, और किस तरह से ये इक़्तिदार के साथ ये मैच करते हैं। शी फॉलोड इस्लामिक टीचिंग्स ऑफ रिस्पेक्ट, उन्होंने जो है वो इस्लाम की तालीमात को फॉलो करते हुए, रिस्पेक्ट करते हुए, सब्र पेशेंस रखते हुए, एंड केयर फॉर एल्डर्स, और बड़ों का एहतराम करते हुए, उनकी इज्जत करते हुए। नो मैटर देयर बिलीव्स, इस बात पर जो है वो कोई भी यकीन के कहते हैं कि ये उनके लिए मैटर नहीं करता था कि वो अभी भी काफिर हैं, उन्होंने फिर भी जो है ना इस्लाम की तालीमात पर अमल करते हुए उनकी इज्जत की, सब्र किया और बड़ों की जो है वो इज्जत की। आई होप कि बेटे आपको इस क्वेश्चन की भी बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी, और मेरा नहीं ख्याल को कोई ऐसा सवाल है जिसको याद करने में आपको किसी भी परेशानी का सामना करना पड़े। सो अपना बहुत सा ख्याल रखें। इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज आपके साथ शेयर करूंगी, और अपना बहुत सा ख्याल रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होती है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।